Aditi, we can If you, start now. It's one. yeah, am I audible? Yeah, you are. If your actions inspire others to dream more, learn more, do more, and become more, you are a leader. It's a beautiful quote quoted by John Quincy Adams. So, with this quote, I would like to begin our talk show named Conversation with Consultants. Good morning, everyone. I am Aditi Jain, Strategic Alliance Advisor of SK Associates and Group, and your host for today's talk show. Hello everyone, I'm Shrishti Singh, the head of public relations at SK Associates and Group. It's my pleasure to host this show with Aditi. Before we begin our talk show, let me briefly introduce SK Associates and Group. We are an ISO certified management consulting firm registered under the MS Amity Act 2006 student entrepreneurs globally, covering areas such as compliance, operations, marketing, research and development, human capital, strategy, and operations. Our passion lies in helping these budding entrepreneurs bring their dreams to life and contribute to global economic growth. Entrepreneurship is a catalyst for change and innovation. It's a powerful force that one can reshape industries, transform lives, and make the world a better place. We are committed to supporting students, entrepreneurs on their journey, equipping them with the tools, knowledge, and networks they need to succeed. Now, before we begin our show, let's take a moment to introduce our guest for today. It gives us immense pleasure to welcome Advocate Kartike Paneri, founder and chairperson, Cyber Legal Associates, to this special event. We are truly honored by your presence today and we are thrilled to have you share this momentous occasion with us. We welcome you, sir, to the Thank you show. very much. Uh, so, uh, so the first question to you is, how did you become interested in cyber law, and what led you to establish your own cyber law firm? Uh, it's a tricky question actually, and it was. Let me go into flashback in 2002. In 2002, actually, I completed my Bachelor of Commerce. And I can say I'm an accidental lawyer. Reason being, I never thought that I will be a lawyer. I was I have completed my Bachelor of Commerce and I was all set. I had big plans to pursue my masters in commerce in USA. And after completing my bachelor's degree, but however, fate had some other plans for me. Just 2 days before, I can actually say that my visa schedule was all set, and just 2 days back, I met with an accident, and that forced me to stay back in India. With newfound free time on my hands, I decided to embark on a different path and enroll in LLB because I was like, अभी कुछ है नहीं, let's go with LLB. So I started accidentally in law field. During my law field in 2002, when I started in law, my interest was, I don't wanted to become a normal lawyer just like everyone because I wanted to do some specialization. So during that my law studies, my interest was between cyber law. And given my strong background in technology, including completing an ethical hacking course, yes, let me tell you, I was a ethical hacker also once upon a time. So I used to do some tricks on my friends and siblings. So I found myself captivated in the evolving legal landscape of the digital world, witnessing the increasing complexities of cyber issues and recognizing the lack of specialized legal expertise. I saw a unique opportunity because in 2005, I exactly remember in 2005, I approached a bookseller and I asked him whether he has any book on cybercrime and cyber laws. He was astonished because Information Technology Act was introduced in 2000 and till 2005 he was not having any single book on cybercrime and Information Technology Act. So he told me I am the first one who even asking for this kind of book. So it was a unique experience for me and motivated by a passion for navigating the intricate intersection of technology and legal frameworks. I took natural step forward and
and decided to establish my own cyber law firm. My goal is so simple. My goal is to address the growing need for specialized legal services in the ever expanding realm of cyberspace legalities. And I'm having good team. My firm is dedicated to providing clients with tailored solution to the unique challenges presented by the digital world. Combining my legal expertise with a deep understanding of technology, I have started my law firm around 2007. Since 2007, I've been in this field, and there is no look back. So till date, I'm having good team around 10 to 15 associate advocate, and all are technological sound. So this is how I started my cyber law firm. Thank you so much, sir, for your insights. Can you share a recent case or scenario that highlights the unique challenges of cyber law in today's digital landscape? There are many cases actually. See, let me tell you one thing. So far, the cyber law is concerned, there is no term like cyber laws. It's in recent era, not now, not recent, since 2000. It was introduced in 2000. I first got my laptop in 2000, 1998. Around 96, desktop was introduced in India. And at that time, having desktop was like you are into category of very sound and technological people. But at that time, I was like in 1998 when my father got my first laptop from USA. I was having fear. I don't know whether to start or not. When my father is a doctor, so he went to clinic. So at that time, I was also kid, not I was actually teenager. So I started like, let me try. I just opened the flip of the laptop, turn it on, and switch it off. And it was my achievement at that time because I was like, it was a dream for me. So it was from that time I started, practicing all this technological thing. So from that time, and the first case of cybercrime was with me only in my career. There were some gaming websites, and you are very fascinating. At that time we were having dial-up connection. Now we have 5G, but at that time dial-up connections were there. So I was surfing the websites, and accidentally I clicked something. So he told that they will tell me my future. I was kid. I thought let's give a try and know the future. I just accidentally clicked the link and I fill all my details, personal details, when I born and everything. At the end of the page, he asked me, fill your credit card details. He just simply asked me, fill the credit card details. But I was like, I was not having any credit card because I was a teenager. I was not having any expertise in banking sector, and I don't know what how credit card works. So I was like, if my father come to know about all this thing, he will punish me. So I thought if this thing happening with me, so when I become lawyer, so I sometimes I laugh on my silly mistakes that I uh, became the victim of cybercrime. And if in the recent scenario, in recent case, so there's a challenge of cyber law when a major e-commerce platform faces a massive data breach. I will not share any name of my client, but I will give you some data. The intricate web of international users, where varying data protection laws and the sophisticated nature of the cyber attack, and cyber attack pose the unique legal challenges. The incident emphasized the need of agile legal frameworks to address cross-border implications. And also we are facing some issues with security regulations and the growing importance of the digital privacy and ongoing complexities of cyber law practitioners navigate a dynamic landscape today's digital world. So like one of my client who is a small e-commerce business fell victim to sophisticated cyber attack. The attackers exploited a vulnerability in the company's online payment system and gaining unauthorized access to the sensitive customer information.
including credit card details and all. The breach not only compromised the privacy of the numerous customers but also posed a significant threat to the business reputation. The unique challenge in this case was the cross-border nature of attack. The cyber criminals were somewhere operating from different country and they were used VPN. So to track the IP address of cyber criminals was a big task, and making it challenging to trace and apprehend them. This brought into play the complexity of international cyber law and the need of cooperation between legal authorities of different jurisdictions. We lodged complaint, investigation started, but somehow we were not happy. And to complicate the matter further, the legal framework for data protection and cyber security varied significantly between the victimized company's home country, like in India, and the location from which, because we were having multiple locations. Sometimes it was Singapore, Russia, USA, Europe, anywhere. Who possibly he must be from India only, but it was hard task further. And this highlighted the necessity for the understanding of both domestic and international cyber laws to navigate uh, to solve the case effectively. And as we deeper into the investigation, we also discovered that the attackers had used advanced encryption techniques. It was so advanced that it was hard for us to even cover the tracks. That aspect emphasized the evolving nature of cyber threat and the need for legal professionals to stay ahead of technological advancement to the effective combat of cybercrime. Ultimately, the case showcased the pressing need for the specialized expertise in cyber law to address the challenges posed by digital crimes that transcend the border, and further it underscored the importance of developing comprehensive legal frameworks that can adapt the ever-changing landscape of cybersecurity. And it was very tough task, but somehow, and also the cyber criminals wrote a mail: if you don't give us any ransomware, we will not free your computer. So these are some cases. Further, nowadays, this is the small case I told. You must be aware about the video call scam and Paytm scam. There are many scams like technology are changing day by day. So this is the scenario as of now. Chirag, can you mute yourself, please? Chirag, please can you mute हेलो. yourself? हाँ. Can you mute yourself, please? हेलो. थोड़ी आवाज कम आ रही है. हेलो. हेलो. Hello. हाँ, आप सर सर को बोलो ना, इंग्लिश बोले, इंग्लिश में बोले. किसमें बोले? Sir, actually, your voice is not audible to him. Okay. Can you, Srishti, can you listen properly? Or am I audible? Yes, sir. To me, you are audible. Okay. Sir, my next question to you is, what are the most common legal issues your client face in the real of cybersecurity, and how do you address them? Uh, this is also a good question actually. In the realm of cybersecurity, my clients often encounter a variety of common legal issues that require careful attention and tailored solutions. Let me tell you some challenges how is typically I address them. The most common is data breaches and privacy concerns. Like many businesses face the risk of data breaches, exposing sensitive information and potentially violating the privacy laws. Now, be it a school kid or any big organization, we don't have any good cyber security laws for so far the data is concerned. We are things are improving, but still we don't have any good laws like EU standards. So
I work with the clients to establish robust data protection measures, conduct privacy impact assessment, and ensure compliances with the relevant data protection regulations. And in the event of data breach, I guide them through the legal obligations, how to report them, reporting requirements, how and communication strategy to mitigate the reputational damage. Because most of the clients are not aware of how to report the crime. And specifically when there is a data breach, they don't know how to because their piece is already compromised. So they have very little knowledge about that. Second issue is intellectual property theft. We are in digital world, and the digital landscape is rise with threats of intellectual property theft, including unauthorized use of reproduction of proprietary information. So, like you must be knowing about all these things that copyright issues like without there are many cases in Ahmedabad and all over India and all over the world for these things. So I assist client in safeguarding their intellectual property through legal mechanism like patent, trademark, copyrights, and in the event of a breach, we explore legal avenues to pursue the enforce intellectual property rights, including litigation if necessary. And and ahead of them, cybercrime and fraud. Like there are instances of cybercrime, including phishing attacks and online fraud, are on the rise, posing financial and reputation risks. You must have come across all these things that in newspaper you must be reading every day their account is freeze because of some unauthorized transaction, and there are many crimes like that. So I help client to develop comprehensive cyber security policies and training programs to educate employees about the potential risks. In case of cybercrime, I work with law enforcement agencies and employ legal strategies to identify, track, prosecute, and perpetrators because I'm having a very good team so far, legal and techno team. Further, we also guide them for regulatory compliance. Like there are many issues like navigating the complex web of security regulations and ensuring the compliance with evolving legal requirements can be challenging. So I assist in understanding the adhering to applicable cyber security regulations such as GDPR, HIPAA, industry specific standard, ISO, regular compliances, audits, and updates to the policies and procedures are crucial to the staying ahead of the challenging legal landscapes. Further, in big companies, there are contractual disputes and liability. So, dispute may arise concerning contractual obligation related to cybersecurity and liability concerns that may emerge in event of cybersecurity. So, how will we address it? I help clients draft and review the contracts with a keen focus on cybersecurity provisions. In case of disputes, I engage in negotiations, mediations, or litigations to protect my client's interest and resolve issues in a manner that align with legal requirements. Further, employee training and insider threats. Like you must be aware that uh, employees often unintentionally contribute to cybersecurity vulnerabilities and insider threats that can pose significant risk. So, addressing it, I work with clients to implement a robust employee training programs on cybersecurity best practices. Additionally, I assist in creating policies and procedures to mitigate insider threats. Further, we keep balancing security measures with privacy considerations. In addressing these issues, the key line in a proactive and comprehensive approach that combines legal expertise with deep understanding of ever-evolving landscape of cybersecurity. This involves ongoing collaborations with clients to ensure their legal strategies align with the emerging threats, evolving regulatory frameworks. Further, there are this is mainly with big companies and all, but there are so many individual clients as well. They are not having any kind of knowledge. They are come from very limit or very limited background of any cyber security or technology. So somehow we all are we all are aware about the scam where without
verifying, we give details of credit card, debit card, we share OTPs. So this is also nowadays big challenges. So we educate people, we organize webinars, and seminars to for law students, for some banks, some police official, forensic departments. As and when required, we help them. So this is how we conduct all these things. Thank you so much, sir, for sharing insights. Can you elaborate on your journey as the founder and chairperson of the Cyber Legal Associates and the pivotal role you have played in shaping the organization over the past 6 years? Not past 6 years. I have been in this field since last I say 18 or 20 years. So my role is to go with my team. Unless and until my team is satisfied with my work, I won't be able to give them a pleasant environment. As and when any new recruitments are there, some interns are there, from day one we teach them how to just not cyber laws. This is just, we are just till now we are discussing about only cyber laws, but in my firm we do handle cases like civil, criminal, consumer, matrimonial disputes. So unless and until you are focusing on details, small details, like everybody wants to be a Harish Salve. Every junior comes with with a dream that he or she wants to become a good lawyer within a span of 6 months. Let me tell you one funny incident. One of my intern just came for a month, and she just started mentioning before the courts, and she got some idea from the court that how courts work, how we deal with the clients, how law firm starts and we run the law firm. So after 15 days, she came to me and she was like, "Sir, having very, I'm not having very good feeling about this legal field because 15 days and I am not able to solve any cases. I'm not able to argue. I'm not able to understand the law points. And even I go through the order of the Supreme Court, still I'm facing the challenges. So everybody wants." कार्तिक सर हाँ जी, कार्तिक सर यस। मेरा अनुरोध है अगर आप हिंदी में बोलेंगे तो हमें बहुत ज्यादा पसंद आएगा और हम समझ पाएंगे। थोड़ी दिक्कत आ रही है। आपका सब्जेक्ट बहुत अच्छा है, इट विल बी हेल्पफुल, बट और भी व्यूअर्स हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं लेकिन वो आ नहीं पा रहे हैं क्योंकि इंग्लिश में इंटरव्यू है। प्लीज आप हमारा साथ देंगे? जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं हिंदी में भी आपके साथ इंटरेक्ट करूंगा। तो धन्यवाद। is it fine, Aditi, if I interact? Yeah, do Yeah. be a language comfortable. I'm comfortable with, but for audience, I need to. Yeah, you can use both, no worries. So you can use both. We don't have any problem. Okay. So जितने भी अभी तक जूनियर्स आ रहे हैं, इवन जब मैं भी खुद जूनियर था, ऐसा नहीं है कि मैं एक दिन में ही साइबर लॉयर बन गया था। डे वन मेरे को अभी भी याद है, अराउंड 2006 when I used to introduce myself as a cyber lawyer. तो वन फाइव डे वन ऑफ माय सीनियर, उन्होंने मेरे को इंट्रोड्यूस किया कि ये बहुत अच्छे लॉयर है और ये साइबर कैफे का लॉयर है। उस टाइम लोगों को ये नहीं मालूम था कि साइबर क्राइम और साइबर लॉस क्या है। साइबर लॉस का मतलब था उनको ये था कि साइबर कैफे के लोग। तो आई वाज लाइक, अब सीनियर थे, कुछ बोल भी नहीं सकता था, तो अब ठीक है वो होता है। तो शुरुआत में मेरे को भी दिक्कत आई। किसी जुडिशरी में मेरे को किसी ने मतलब बोला कि आप साइबर क्राइम देखते हो तो आप टेक्नोलॉजी में अच्छे हो तो आप मेरे को मेरी वेबसाइट चेक करना। मैंने बोला डेफिनेटली सर, गिव मी, मेरे को आपका डोमेन मेरे को दीजिए, वेबसाइट एड्रेस में जाऊंगा। उन्होंने मेरे को दिया abc@gmail.com। सो उस टाइम अराउंड 2006 जब लोगों को इतना नॉलेज नहीं था कि साइबर क्राइम क्या होता है, डोमेन क्या होता है, ईमेल क्या होता है। आधे लोग आज की डेट में भी वेबसाइट को वेबसाइट बोलते हैं। दे डोंट हैव, अगर आईपी एड्रेस तो बहुत दूर की बात है। दिक्कत कहाँ आती है आज की तारीख में, जब हम
कोई भी केस सॉल्व करते हैं या कोई भी केस अटेंड करते हैं, सबसे पहला रोल होता है पुलिस का। अनलेस एंड अनटिल अगर आपके साथ कोई भी फ्रॉड हो गया, XYZ फ्रॉड हो गया, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ऑनलाइन फ्रॉड हो गया, या आज के अगर आपको पता होगा कि वीडियो कॉल पे भी आजकल फ्रॉड हो रहा है हमारे साथ में, तो कोई भी फ्रॉड हो गया तो आप पहले जाओगे पुलिस स्टेशन। पहले आपको तो पुलिस स्टेशन तो बहुत बाद में होगा, पहले आपको ये पता नहीं चलेगा हमको क्या करना है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो डर जाते हैं और दे कीप पेइंग मनी टू द क्रिमिनल्स। बहुत बार ऐसा हुआ है कि मैंने देखा है कि एक क्लाइंट आया हमारा आए थे अराउंड 65 years old. So one fine day in the morning, he got a video call from a artificial intelligence से क्रिएट की हुई एक गर्ल, जो उनके मतलब एक कॉल आया उनको, वीडियो कॉल। सो वो उन्होंने मतलब वीडियो रिकॉर्ड कर लिया उनका, और उनको फिर 2 मिनट बाद, जस्ट एग्जैक्टली 2 मिनट के बाद उनको वो वीडियो आता है कि भाई हमने आपका वीडियो कैप्चर कर लिया है, तो आप जरा देख लेना, ये क्राइम हो गया आपके, तो मैं आपका ये रिपोर्ट करूंगी साइबर सेल में। उसके 2 मिनट बाद फिर से उनको कॉल आता है, पर्सन पोजिंग एज अ SHO ऑफ साइबर सेल। वो बोलता है कि हमारे इतना फास्ट तो कभी हमारी पुलिस ने काम नहीं किया है 2-2 मिनट के अंदर, तो पर हुआ कि 2 मिनट में कॉल आया कि हमारे पास एक कंप्लेन आई है और आपको ये सब धारा लगेगी आपके ऊपर, और हम आपका अभी हम पुलिस स्टेशन में आपको आना पड़ेगा आपका रिप्लाई लिखवाने के लिए, और आपका हम देख सकते हैं क्या करेंगे, क्योंकि वो अब डेफिनेटली कि पुलिस के नाम से किसी को भी कॉल आता है तो थोड़ा डर गए थे वो बुजुर्ग कि ऐसा क्यों हुआ। तो उन्होंने बोला चलो ठीक है, जो हो गया हो गया, अगर आपको ये सब खत्म करना है तो यू हैव टू पे सम अमाउंट। तो उन्होंने बोला कि चलो मेरी इज्जत बच रही है तो आई विल डेफिनेटली गिव सम अमाउंट। ऐसे करते करते 50 लाख वो पे कर चुके। फिर उनको याद आया कि यार ये गलत चीज हो रही है, 50 लाख में दे चुका हूं और अभी भी आज की डेट में 50 लाख देने के बाद भी आई डोंट थिंक सो कि मतलब ये लोग परेशान करना बंद नहीं कर रहे। तो somehow he got my contact, वो मेरे को मिलने आए, बातचीत हुई, तुरंत हम लोगों ने 1930 पे कॉल किया। इतना है कि 1930 पे कॉल करने के बाद में पुलिस एकदम एक्शन में आ जाती है और आपका जो भी पैसा फंसा हुआ, आपके साथ जो फ्रॉड हुआ है वो फ्रीज कर देती है। तो समूह 40 लाख तो हम लोगों ने जैसे जैसे करके पुलिस की हेल्प से फ्रीज करवा दिया। 10 लाख अभी भी नहीं हो पाया है, क्योंकि वो जनरली होता क्या है, अगर गोल्डन आवर्स बोलते हैं, अगर आपके साथ क्राइम होने के 1 घंटे तक आपने अगर कॉल कर लिया 1930 पे, साइबर सेल हेल्पलाइन होती है उसके ऊपर, तो पॉसिबिलिटी है कि आपका पैसा जो गया है वो बच जाएगा और अकाउंट फ्रीज हो जाएगा और साइबर क्रिमिनल उस पैसा यूज नहीं कर पाएंगे। पर अगर आपने डिले किया तो वो पॉसिबिलिटी बहुत कम है। तो ऐसे बहुत सारे केसेस है कि जहां यंगस्टर भी इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। सपोज क्रिप्टो करेंसीज, तो क्रिप्टो करेंसीज के भी बहुत सारे फ्रॉड्स है। उसमें बहुत सारे जो यंगस्टर है अभी डील करते हैं, कहीं ना कहीं उनके साथ ऐसा फ्रॉड होता है कि उन्होंने किसी से क्रिप्टो करेंसी उन्होंने बेची, सपोज बिटकॉइन। क्रिप्टो करेंसी मतलब बिटकॉइन, बहुत वाइड टर्म अगर बोले तो क्रिप्टो करेंसी बहुत लोग नहीं जानते, बिटकॉइन के नाम से ही सब जानते हैं। तो USDT उन्होंने सेल किया, पैसा उनके अकाउंट में आ गया। USDT सेल करने के बाद होता क्या है, जिसने जिसने उनको सेल किया था और अकाउंट में पैसा आया था, उन्होंने कर दी साइबर सेल में कंप्लेन कि भाई हमारे अकाउंट से इस तरह से पैसा चला गया है। अब जिस बंदे ने USDT भी बेच लिया, पैसा भी उन्होंने ले लिया, अब उनका अकाउंट हो गया फ्रीज। बंदे का USDT भी चला गया, पैसा भी चला गया और वो हो गया विक्टिमाइज और वो बन गया अक्यूज्ड। तो वो बैटल चलती रहती है और ये ऑल ओवर इंडिया में बहुत चल रहा है आज की डेट में, गुजरात में भी बहुत चल रहा है। तो ऐसे बहुत सारे क्राइम बढ़ चुके हैं। तो जब मैंने 2005 में मेरा साइबर लीगल का लॉ फॉर्म चालू किया, तब से लेके आज तक हम सोचते हैं ये क्राइम इस तरह से हम लोग पकड़ लेंगे, पर इतने एडवांस हो चुके हैं साइबर क्रिमिनल्स कि आज के डेट में उनको पकड़ना बहुत ही मुश्किल हो चुका है। उनकी मॉडस ऑपरेंडी इतनी चेंज होती है कि मतलब बाय एंड ऑफ द डे हम लोग खुद को, मतलब बीइंग अ लॉयर, आई बीन गोइंग थ्रू ऑल दिस केसेस एवरी डे, बट एट द एंड ऑफ द डे कहीं ना कहीं हमको ऐसा लगता है कि ये हम लोगों ने अभी भी लैकिंग है हमारे बीच में, क्योंकि साइबर क्रिमिनल इतने शार्प हो चुके हैं और बहुत सारे इतने मतलब पढ़े लिखे भी नहीं होते, इतने रिमोट एरिया से काम कर रहे होते वो लोग। मतलब आप लोगों ने नेटफ्लिक्स में एक सीरीज देखी होगी जामतारा, वो
कहने के लिए सीरियस है, बट वो एक्चुअली हो रहा है कि बहुत सारी जगह पुलिस नहीं पहुंच पाती है, और जो क्रिमिनल होते हो सकता है आपके बाजू में बैठ के भी कर रहा होगा, तो आपको नहीं पता चलेगा। तो इस तरह से ये सब डील करते हैं ये लोग सब। Yes, Mr. Mitesh, any question? Okay, thank you for highlighting it, Mr. Karthikeya. Sir, I would like to ask you, how has the evolution of technology impacted the legal framework surrounding cyber threats and incidents? The evolution of technology significantly, impacted the legal framework surrounding the cyber security. And let's break down some key ways in simple language. Rapid technology advancement. So technology is like a fast train; it keeps speeding up. जैसे कि मैंने अभी बताया, हर घंटे हर मिनट टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है। अभी तक हम लोग ऐसे क्रिमिनल से लड़ रहे थे जो हमको मालूम ही नहीं था। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बढ़ चुका है। अब इतना ये क्राइम बढ़ने वाला है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम लोग पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। अभी आपने देखा होगा कि बहुत सारे एक्ट्रेसेस और एक्टर्स का डीप फेक वीडियो बन चुका है। अभी आज मॉर्निंग में न्यूज़पेपर में था, अक्षय कुमार के साथ भी ये हादसा हो चुका है कि उन्होंने किसी गेम कंपनी का कुछ ऐसा विज्ञापन किया भी नहीं है, पर समवन हैज उनकी आवाज रिकॉर्ड करके और एक वीडियो बना दिया है, तो वो भी वायरल कर दिया है, तो वो भी एक हो चुका है। फिर ग्लोबल नेचर ऑफ इंटरनेट, तो इंटरनेट का कोई बॉर्डर नहीं है। It's like a big connected playground for everyone. So global nature has made it challenging for the laws to work within the one country. Cyber crime happens किसी के भी साथ हो सकता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरे साथ हुआ है, किसी के साथ हो सकता है, किसी के भी साथ हो सकता है। तो और ये इतना खुला प्लेग्राउंड है कि आप पकड़ नहीं सकते हो कि टेक्नोलॉजी में सब बहुत सारे साइबर क्रिमिनल्स है, इस तरह से ऑपरेट करते हैं, दे हैव वेरी डार्क नेट है। तो कहीं ना कहीं हम पीछे पड़ते हैं उसमें। फिर डेटा प्रोटेक्शन और प्राइवेसी लॉज। अब हमारी मोस्ट ऑफ द लाइफ हो गई है, एवरेज अगर एक इंसान को देखा जाए तो 4 से 6 घंटे वो मोबाइल और ऑनलाइन स्पेंड करता है। और जहां तक हमारा सवाल है, इंडिया में हमारी प्राइवेसी के लिए हमारा कुछ पड़ा नहीं है। हम लोगों को क्या हो गया, चलो प्राइवेसी है ठीक है, हमारा बहुत टाइम का अभी अभी चलो ठीक है, थोड़ा बहुत आ रहा है डेवलपमेंट, पर कहीं ना कहीं पहले क्या होता था कि अगर आपका ईमेल आईडी किसी ने हैक कर लिया तो आप क्या करोगे? आप बोलोगे छोड़ यार, गया तो गया, नया बना लेंगे। किसी का मोबाइल नंबर कॉम्प्रोमाइज हो गया तो हम लोग नया मोबाइल ले लेंगे, मोबाइल नंबर ले लेंगे और हम लोग यूज कर लेंगे। पर इंडिविजुअल तक ठीक था, स्कूल कॉलेज लाइफ तक ये ठीक है, पर आज की डेट में जब ग्लोबल नेचर इतना बना हो चुका है कि मतलब जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन जीडीपीआर, और यूरोप में अगर हम बोले तो वहां पे भी सिमिलर लॉज है, बट वहां पे कैसा है कि डिजिटल इंफॉर्मेशन को गाइड करने के लिए वो लोग बहुत सज्ज है, और दे मेक श्योर कि कंपनी जो है उनके जो डेटा है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से यूज करें, क्योंकि डेटा इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट। आज की डेट में देखा जाए तो पैसा चला जाएगा तो पैसा कहीं से भी वापस आ जाएगा। आज आप लोगों ने देखा होगा, हम लोग मॉल में जाते हैं, तो मॉल में जाके क्या करते हैं, वो लोग बोलते हैं एक आपको सिर्फ आपका नाम और नंबर डालना है और आप इनाम जीतोगे। देयर आर नो फ्री लंचेस इन द वर्ल्ड। कोई हमको क्यों फ्री में देगा कोई भी चीज? एक हम डिटेल भर देते हैं, हम लोग सोचते हैं कि वी आर लकी, हमको कॉल आता है कि भाई आपको आना है आपके फिर फ्रेंड और फैमिली के साथ में, और आप ये और ये डेट को आप मॉल में गए थे, आपका लकी ड्रॉ में आपका ये आया है। बहुत सारे जो लोग होते हैं जिन्होंने आज तक कभी उनको फ्री का पेन नहीं मिला है किसी के साथ में, और उनको ऐसा बोलते हैं कि आपको ये हॉलिडे पैकेज मिला, ये मिला, वो मिला। तो डेटा प्रोटेक्शन और प्राइवेसी हमारे कहीं ना कहीं हम लोग खुद भी जिम्मेदार है, क्योंकि हम लोग कहीं भी जाते हैं हमारा डेटा ऐसा शो करते हैं बहुत सारे आज के डेट में। और एक ये सोशल मीडिया के ऊपर हो गया, एवरी टॉम डिक एंड हैरी वांट्स टू बी अ राइजिंग स्टार। किसी को भी, सबको कैसा होगा कि मैं ओवरनाइट सक्सेस चाहिए, सबको ओवरनाइट, सबको फेम चाहिए। अभी कल एक न्यूज आप लोगों ने देखी होगी पूनम पांडे की, तो उन्होंने मौत का भी मजाक उड़ा दिया है। अब
कहीं ना कहीं ये आज मॉर्निंग में पेपर में था, किसी गायनेकोलॉजिस्ट ने मतलब इस चीज को बहुत कंडेम भी किया कि नहीं ये क्या है, आप चलो ठीक है अवेयरनेस ला रहे हो कोई और तरीके से लो, पर आपने अननेसेसरी हाइप क्रिएट कर दिया और पैनिक क्रिएट कर दिया कि जो अभी औरतें कुछ प्रेग्नेंट भी है, जिसको कभी भगवान ना करे किसी को हुआ हो, तो इतने पैनिक में आ गए कि कल गायनेकोलॉजिस्ट के वहां अपॉइंटमेंट और कॉल्स बहुत हो गए, तो उनको उनके स्टेटस पे डालना पड़ा कि ऐसा कोई नहीं होता है, और अगर किसी को भगवान ना करे किसी को ये सर्वाइकल कैंसर हो, बट अगर किसी को होता भी है तो कोई अगर हुआ है तो आज के बाद मर नहीं जाएगा। तो अननेसेसरी हाइप क्रिएट करना, आप देखोगे कि बहुत सारे यंगस्टर हो गए, यंगस्टर तो छोड़ो बहुत सारे एजेड मतलब है, वो भी रील्स बना रहे हैं आज की डेट में, और अपना जैसे आप कहीं भी घूमने जा रहे हो तो आप क्या करोगे, फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे लाइव चले जाओगे, आप लिख दोगे कि वी आर एंजॉय वैकेशन इन कहीं भी मतलब आप, तो और आपकी प्रोफाइल में भी सब डेटा आपका सब दुनिया भर की चीज डाली होती है कि आपके मम्मी पापा, आपकी वाइफ, आपकी सिबलिंग कौन है, और सबको फॉलोअर्स चाहिए, तो प्रोफाइल लॉक नहीं करते हैं बहुत सारा, अपना पूरा डेटा इंक्लूडिंग बर्थ डेट, आप कहाँ पैदा हुए हो, वो सब आप ऑनलाइन आप डाल देते हो। तो कहीं ना कहीं उस चीज की वजह से होता क्या है कि आपका डेटा आप खुद ही कॉम्प्रोमाइज करवा रहे हो, एंड अगर उसके बाद में अगर आप ब्लेम करते हो कि नहीं गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है, हमारे लॉज खराब है, तो कहीं ना कहीं आप भी रिस्पॉन्सिबल हो। फिर ये तो बात हुई डेटा प्रोटेक्शन और प्राइवेसी लॉ की, फिर साइबर क्राइम लेजिस्लेशन। तो साइबर क्राइम फिजिकल वर्ल्ड में तो है ही है, बट सपोज अब बहुत सारे पहले कैसा होता था कि हमारे जेब से कोई पैसा काट के लेके चला गया, तो अब मोडस ऑपरेंडी थोड़ा चेंज हो गया, चीज वही है, पैसा हमारे जेब से जा रहा है, पर वो कैसे जा रहा है, हैकिंग से जा रहा है, आइडेंटिटी थेफ्ट से जा रहा है। फिर लोग क्या डिजिटल रॉन्ग डूइंग्स को इतना मतलब सीरियसली लेते नहीं है कि भाई ठीक है लीगल सिस्टम है, वी विल एडॉप्ट डील विद दिस न्यू टाइप ऑफ ऑफेंसेस। तो और उसके बाद ई कॉमर्स एंड डिजिटल ट्रांजेक्शन, आजकल क्या हो गया, हमको शॉपिंग करना है तो वी डोंट हैव टू पे एनी फिजिकल मनी, वी यूज प्लास्टिक मनी और डिजिटल मनी। तो कहीं ना कहीं shopping means going to a store generally, but now we buy and sell things with just a few clicks. So laws have had to exist to make sure these online transactions are safe, fair, putting both buyers and seller in digital market space. And further ethical hacking जो है उसके सिक्योरिटी मेजर्स भी होने चाहिए, मतलब जितना राइज हो रहा है साइबर थ्रेट्स में, तो कंपनीज आर नाउ मतलब हायरिंग एथिकल हैकर्स टू फाइंड वीकनेसेस इन द, इसको बोलते पेनेट्रेशन टेस्टिंग। तो वो उनको एथिकल हैकर्स को हायर करती है और वो उनको बताते हैं कि हमारा सिस्टम आप चेक कीजिए और जरा बताइए हमको कि वेदर वी हैव एनी लूप होल्स और नॉट। तो लीगल फ्रेमवर्क जो सपोर्ट करता है इन सिक्योरिटी मेजर्स को, तो मतलब बिजनेसेस को भी साइबर अटैक्स को विदाउट ब्रेकिंग द लॉ उन लोगों को एक फ्रेमवर्क बनाना चाहिए। फिर सोशल मीडिया हो गया, ऑनलाइन स्पीच हो गया, तो अब सोशल मीडिया क्या हो गया, जाइंट पब्लिक स्क्वायर है जहां सबको खुद के विचार रखने का एक प्लेटफॉर्म मिलता है। तो अब आपको मालूम होगा सेक्शन 66A जो कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की थी, अब उसमें अगर आप ऑनलाइन किसी को कुछ बोलते हो, कुछ वर्ड से यूज करते हो, तो वो पहले आईटी एक्ट में थी सेक्शन, पर सुप्रीम कोर्ट ने वो सेक्शन ही पूरी स्क्रैप कर दी। तो अब हो क्या गया है, आप फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे किसी को कुछ भी बोल रहे हो, तो कहीं ना कहीं ये एक चीज आनी चाहिए कि अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच भी है तो देर आर सब बाउंड्रीज ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच। फिर इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो गया, मतलब हम लोग आज क्या कर रहे हैं, किसको भी कनेक्ट करना हो तो इंटरनेट के द्वारा, मतलब पहले यूएस से कॉल करना होता था, बहुत टाइम लगता था, बहुत पैसा लगता था। अभी ऐसा हो गया कि भाई व्हाट्सएप हो गया और बहुत सारे अलग अलग माध्यम आ चुके हैं कि जिसकी वजह से हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं। आप लोगों को ये चीज मालूम होगा कि एक मीम्स बहुत बनते हैं इसके, कि हम लोग कुछ भी बात कर रहे हैं तो फेसबुक हो गया, गूगल हो गया, या फोन हमारे एंड्रॉइड हो गए, या कोई भी, वो सुन रहे हैं हमारी बातों को। और जैसे भी हम लोग कुछ बात करेंगे, सपोज आई वांटेड टू बाय सम फोन और वो, तो हम लोगों को किसी भी वेबसाइट पे हो गया या फेसबुक पे हो गया, कहीं भी सोशल मीडिया पे गए तो उसको एडवर्टाइजमेंट शुरू हो जाती है। तो कहीं ना कहीं हम लोग फोन में भी वो सेटिंग हम लोग नहीं करते कि हमारा माइक्रोफोन ऑफ रखे, या बहुत सारे हम लोग कोई भी ऐप डाउनलोड करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं,
वी कीप गिविंग परमिशंस, हम लोग परमिशन दे देते हैं कोई भी। मेरी आदत है कभी कभी कुछ पढ़ने की, सपोज इफ आई डाउनलोड एनी ऐप, तो मेरी एक आदत है कि मैं उसकी मतलब पढ़ता हूँ प्राइवेसी पॉलिसीज और इन लोगों की क्या टर्म्स एंड कंडीशन है। जैसे गूगल की भी मैंने पढ़ रखी है बहुत सारा अलग अलग। तो अगर हम लोग उनकी सर्विसेज, आज गूगल की इतनी सर्विस, हम वी आर कनेक्टेड थ्रू गूगल मीट, तो इट्स फ्री एज ऑफ नाउ, बट कोई आपको फ्री क्यों देगा? वाई? बिकॉज वी आर समवेयर, हमारी पूरी लाइफ उनके सामने हमने खुल के रख दी है। हम लोग क्या खा रहे हैं, हम लोग क्या पहन रहे हैं, हम लोग कहाँ घूम रहे हैं, सब घर वालों को नहीं मालूम है, पर गूगल को सब मालूम है। और अलग अलग कंपनी से उनको सब मालूम है हम लोग क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, हमारी चॉइसेस क्या है, हमारी लाइक्स डिसलाइक्स। तो कहीं ना कहीं ये है। एंड गवर्नमेंट सर्वाइलेंस एंड डिजिटल राइट्स भी होने चाहिए, मतलब गवर्नमेंट यूज टेक्नोलॉजी टू कीप अस सेफ, बट there is a fine line between the security and invading our privacy. Laws are adapting to make sure to legal our digital right to are protected, and even the governments use technologies for surveillance investigations. But कहीं ना कहीं फिर भी हमको इतना वो अभी नहीं हो पा रहा है, तो हमको कहीं ना कहीं इसको अभी करना पड़ेगा, स्ट्रिंग करना। वो गवर्नमेंट के साथ हमको हाथ मिला के चलना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने डिजिटल इंडिया का मूवमेंट चालू किया है, पर अकेले मोदी साहब ही नहीं कर पाएंगे। कहीं ना कहीं हमको भी हमारी जिम्मेदारी समझ के हमको इसके साइबर से मतलब जो एनवायरनमेंट है उसको सिक्योर करना पड़ेगा। Thank you so much, sir, for sharing. Addressing cyber threats and how your firm navigates cross-border legal issues. जैसे कि मैंने बताया अभी क्रॉस बॉर्डर जो है, तो हम लोग बहुत लिमिटेड है इन सब चीजों में। जैसे क्रॉस बॉर्डर हो गया, तो कोई भी क्लाइंट हो गया, आज हमको ये नहीं मालूम है कि क्रॉस बॉर्डर से ये जो क्राइम हो रहा है हमको किस तरह से इसको वो करना है। बट कहीं ना कहीं हम लोग लीगल फ्रेमवर्क को बना एक जैसे रैपिड टेक्नोलॉजिकल जो एडवांसमेंट हो रहा है, तो अब क्रॉस बॉर्डर चैलेंज में क्या होता है, अब जुरिडिक्शन जो साइबर जुरिडिक्शन होता है, अब ये अभी आज की डेट में हम आईटी एक्ट 2000 से है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 से, उसमें 2008 में अमेंडमेंट हुए हैं, पर स्टिल अभी जैसे आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस ये सब चेंज हो रहे हैं। तो मैं आशा रखता हूं कि हमारी गवर्नमेंट इसको भी चेंज करे, क्योंकि कहीं ना कहीं होता क्या है, जैसे बहुत सारे जगह ऐसी होती है कि जहां हमारी कोई देश, उनके देश के साथ हमारी कोई ट्रीटी नहीं होती, तो साइबर क्रिमिनल क्या करते हैं, वहां पे असाइलम ले लेते हैं, या उस जैसे सपोज चाइना हो गया, कोई भी ऐसा हो गया कंट्री, तो उसके साथ हमारा कोई ट्रीटी नहीं है। तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वी हैव वेरी लिमिटेड स्कोप कि हम लोग उनको पकड़ पाए, या अगर चलो हम पकड़ भी लेते हैं, सपोज हम लोग आईपी एड्रेस ट्रैक करके क्रॉस बॉर्डर जो क्राइम क्रिमिनल्स जो बैठे हुए हैं, तो उनको हमने कहीं ना कहीं कैच भी कर लिया। दिक्कत कहाँ आती है, उनको यहाँ लाने का खर्चा इतना हो जाता है, और कहीं ना कहीं हमको आज की डेट में भी आप देखोगे कि विजय माल्या और ये सब है, वो लोग, नीरव मोदी है, वो अभी लंदन में बैठे हुए हैं। हम लोग बहुत ट्राई कर रहे हैं कि वहां से हम लोग उनको लाके हमारे देश के जो कानून के हिसाब से उनको सजा दे पाए, पर कहीं ना कहीं जो लीगल बैटल चलता है वो ट्रायल कोर्ट से शुरू होता है, सुप्रीम कोर्ट तक चलता है, फिर कोई केसेस में प्रेसिडेंट तक चले जाता है, माफी अर्जी डालते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सब चीजें अभी आज के दिन में चल रही है। तो क्रॉस बॉर्डर तो बहुत दूर की बात हो गई, हम जो हमारे आसपास बैठे हुए लोग हैं, अगर उनको भी हम थोड़ा ये पकड़ पाए और ये सुधार पाए, तो बहुत अचीवमेंट होगा हमारे। कार्तिक सर, हाँ जी, बोलिए। आप वो अभी आजकल सेक्सटॉर्शन के बहुत केसेस चल रहे हैं, बराबर है, तो उससे हम कैसे निराश हो सकते हैं? क्योंकि बहुत दिक्कत आती है, कोई भी इनोसेंट इंसान जो है वो कहीं वीडियो देख रहा होता है और कुछ समय में ही उसके सामने सेक्सटॉर्शन के केसेस हो जाते हैं और ब्लैकमेलिंग के कॉल आते हैं, तो उससे हम कैसे निकल सकते हैं सर, आप बता पाएंगे? जी बिल्कुल, मैंने पहले भी इस बारे में बताया कि हमने आप एक केस डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले। अब होता क्या है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है। अब सपोज ये इन जनरल बता रहा हूं, अगर कोई भी बंदा, किसी को भी एक वीडियो कॉल या मिस कॉल आता है अननोन नंबर से, तो पहले तो ट्राई करिए, इग्नोर करिए। अगर वीडियो कॉल आ रहा है सीधा, ट्राई करिए कि आप खुद का वीडियो चालू ना करें और वो पहले देख ले अगर आपका पहचान वाला, क्योंकि आजकल हो क्या गया है,
ये तो हो गया, हम लोग बात कर रहे हैं कि भाई अननोन नंबर से। टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है कि हो सकता है आपके वाइफ, आपके भाई बहन, किसी के भी नंबर से आपको कॉल आ सकता है। कॉल फॉर्जिंग एक बहुत सिंपल टूल है और उसके लिए कोई इतना रॉकेट साइंस भी नहीं है। तो मैं चाहूँ तो अगर आपके ही नंबर से आपको कॉल कर सकता हूँ और आपको पता भी नहीं चलेगा, मैं रैंसम मांग सकता हूँ आपसे। तो ऐसे टाइम में जैसे कि अगर किसी ने आपके नंबर से भी कॉल कर लिया तो प्लीज वेरीफाई कीजिए पहले, क्योंकि ये क्राइम बहुत बढ़ रहा है आज की तारीख में। बहुत सारे एडवोकेट्स भी इसके जपेट में आए हुए हैं और जब भी ऐसा कुछ क्राइम होता है तो पहले, अगर मान लीजिए कि अगर आपका वीडियो किसी ने कैप्चर कर लिया और आपको ब्लैकमेल करने का उन्होंने कोशिश किया, ये बात हमेशा माइंड में रखना कि अगर ऐसा कुछ हो भी रहा है तो पहले 1930 पे कॉल करके रिपोर्ट कीजिए, नंबर 1। सेकंड, वो नंबर ब्लॉक कर दीजिए तुरंत ही। नंबर 3, अगर कोई आपको कॉल आता है कि भाई मैं साइबर सेल से बोल रहा हूं और यू हैव टू पे सम अमाउंट टू डिलीट दिस वीडियो फ्रॉम यूट्यूब और एनी वेबसाइट, एक पैसा मत दीजिए, क्योंकि ऐसा कुछ होता नहीं है। नंबर 1, पहले होता था कहीं कहीं, पर अब लोग थोड़े समझदार हो चुके हैं। एक रुपया भी देने की जरूरत नहीं है, जो भी, क्योंकि आप देखो कभी कोई पुलिस वाला आपसे पैसा नहीं मांगता है डिलीट करवाने के लिए। अगर आप विक्टिमाइज हो, आप जाइए नियरेस्ट पुलिस स्टेशन। अगर आप कहीं शर्म आ रही है, 1930 पे कॉल कीजिए, उनसे बात कीजिए, वो आपको गाइड करेंगे स्टेप टू स्टेप कि कैसे इसके बचना। आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन हमेशा सिक्योर रखिए। आपका फेसबुक या कोई भी सोशल मीडिया हैंडल होगा, उसको आप प्रोफाइल लॉक रखिए। कोई भी पर्सनल सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है वो आप किसी के साथ शेयर मत कीजिए। फिर अगर आपके साथ ये क्राइम का आप विक्टिम बन भी चुके हो तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जैसे रिपोर्ट करोगे आपका चीज खत्म हो जाएगा। और साइबर क्रिमिनल्स क्या करते हैं, वो टारगेट करते हैं ऐसे लोगों को जो एज में होते हैं या फिर स्कूल में पढ़ रहे होते हैं, क्योंकि वो लोग जल्दी इस फ्रॉड में आ जाते हैं। और जब ऐसा फ्रॉड होता है तो उन लोगों को थोड़ा उनकी रेपुटेशन का लगता है कि हमारी रेपुटेशन कहीं चली ना जाए। हमारे एक एडवोकेट आ रहा हमारे पास में, तो नाम किसी का भी नहीं लूंगा, पर वो आके मतलब अच्छे वेल नोन एडवोकेट, थोड़े टेंस्ड है वो। तो मैंने उनको पूछा कि क्या हुआ, तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे कॉल आया था और अब वो बोल रहा है कि मैं आपका वीडियो, और कहीं ना कहीं उसमें हुआ था ये कि ये साइबर क्रिमिनल्स इतने एडवांस हो चुके हैं कि आपकी पूरी फोन बुक कॉन्टेक्ट जो है वो लोग अपलोड कर लेते हैं उनके सिस्टम में। तो कहीं ना कहीं वो लोग शेयर भी करते हैं वीडियो, ऐसा नहीं है, अपने जो फोन बुक में। तो हमेशा याद रखिए कि अपना कोई भी ऐप डाउनलोड कर रहे हो या कोई भी करे तो आप पहले देखिए कि आप ऐप कौन सी परमिशन मांग रहा है, क्योंकि जब कोई भी आप अलाउ कर देते तो उनके पास पूरा ये आपका फोन का एक्सेस आ जाता है। आपने ये भी सुना होगा कि एक लोन ऐप आता है, एक जैसे कि 7 दिन के लिए आपको विदाउट एनी वेरिफिकेशन लोन मिलता है, जो अमाउंट बहुत स्मॉल होता है। विदाउट वेरिफिकेशन कभी पहले कोई बैंकिंग इंडस्ट्री, आरबीआई ने अलाउ किया ही नहीं है। पर फिर भी ऐसे बहुत सारे ऐप है कि जो छोटे छोटे से मतलब मध्यम वर्गीय लोग है या मतलब जिनकी सैलरी बहुत कम है, वो लोग क्या करते हैं, कभी उनको जरूरत होती है तो किसी भी ऐसे ऐप से लोन ले लेते हैं। वो लोग 5,000 की, 7,000 की, वो एक वीक के लिए होती है। 4 दिन के बाद में जहां से लोन ली जाती है, तब होता यह है कि वो लोग फोन कर रहे हैं कि आपका लोन का रीपेमेंट आप कब करोगे। आप बोलते हैं अभी हमारे 3-4 दिन हुए हैं, अभी 2-3 दिन और बाकी है हमारे पास में। तो वो लोग क्या करते हैं, आपका जो फोन बुक होता है उनके पास, उन्होंने ऐसा पूरा एक्सेस, आपका एक्सेस होता है उनके पास में। तो वो लोग क्या करते हैं, पूरा जो जितने भी आपके व्हाट्सएप है सब कॉन्टेक्ट में उनको व्हाट्सएप करते हैं विद आपके डॉक्यूमेंट्स और आपका लोन उन्होंने जो लिया होता है। वो बोलते हैं ये आदमी फ्रॉड है, इसने लोन लिया हुआ है। तो मेक श्योर करें कि आप ऐसी कोई भी ऐप से कभी भी कोई पैसा ना ले, कोई लोन ना ले। और अगर मजबूरी में ले भी ली है तो इतना माइंड करें कि कोई भी ये आपकी हर एक चीज परमिशन ग्रांटेड ना करे। और स्क्रीन शेयरिंग ये लोग क्या करते हैं, बहुत सारा एनीडेस्क करके एक एप्लीकेशन है जो आप पूरा आपका कंप्यूटर कंट्रोल वो लोग आप ले लेते हैं, पूरा स्क्रीन आपका शेयर कर देता है, आपका पूरा डेस्कटॉप जो है आपका, वो आप उनके साथ में शेयर कर देते हो पूरा। तो वो लोग क्या करते हैं, उससे आपका पूरा डेटा कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, पूरा डेटा अपने में एक्सेस कर लेते हैं। और आप अगर आपने बहुत टाइम मतलब ऐसे किसी मूवी में भी देखा होगा कि बहुत सारे लोग को मालूम नहीं होता, उनका वीडियो चालू हो जाता है। देयर आर मल्टीपल एप्स और गैजेट्स भी इतने आ चुके हैं कि आपको पता नहीं होता कि आपके फोन में किसी ने इंस्टॉल कर भी दिया है।
तो बहुत सारे हमारे पास ऐसे केसेस भी आते हैं कि वो लोग एक डेटा या आपको कोई भी व्हाट्सएप पे या किसी भी ईमेल में एक फाइल भेजते हैं जिसके अंदर वो डेटा कलेक्ट मतलब आपको एक लिंक या ऐसा कुछ भेज देते हैं जिसके आप क्लिक करते हो तो पूरा आपका डेटा उनके पास चला जाता है। तो मेक श्योर करें कि आप किसी भी अननोन आदमी से कोई लिंक ना करें। तो ये अभी जो सेक्सटॉर्शन तो है ही है, पर अभी आज के टाइम में ये दूसरे भी जो मैंने पहले भी बताया था कि जो क्राइम चल रहे हैं ये क्रिप्टो करेंसी से अकाउंट फ्रीज करवाने वाले वो भी आजकल बहुत चल रहे हैं और यंगस्टर में बहुत चल रही है सब चीजें। बहुत बार ऐसा होता है कि आपका हार्ड अर्न मनी होता है वो आप विदाउट एनी मतलब कोई आपने कोई क्राइम कमिट नहीं किया होता है फिर भी आपको आपका अकाउंट फ्रीज हो जाता है, फिर आपके चक्कर लगते हैं साइबर सेल से, फिर जो भी पुलिस स्टेशन होता है उसमें मजे की बात ये है कि आप बैठे हो हैदराबाद में, रिपोर्ट हुआ है झारखंड में या अहमदाबाद में, तो आपको वहां पे लोकल या तो एडवोकेट हायर करना पड़ेगा या आपको वहां पे जाना पड़ेगा। वहां जाने के बाद में आपको साइबर सेल जाना पड़ेगा। आप पहले आपको इनोसेंस दिखाना पड़ेगा। आपको मालूम भी नहीं होता कि किस कौन सा ट्रांजेक्शन आपको दिक्कत करके गया। तो ये सब बहुत सारे अलग अलग क्राइम है जिसको मतलब आपको ध्यान रखना चाहिए और बचना चाहिए इन सब चीजों से। Thank you for highlighting it. Sir, my next question to you is like how does section 10A really means? Like, can you elaborate on section 10A of the IT Act? सी मैं हिंदी में बोलूँ या ये थोड़ा, क्योंकि थोड़ा हिंदी में बोलना मेरे को आ, आ, Sir, I'm- we don't have any problem. We don't have any problem. I know section 10A, but for other people, I'm asking it. Like, how does it like come into force? How does it really matter? Like, I want other people to know. तो ये सेक्शन 10 जो है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का है, वो मतलब कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड एनफोर्सेबल है या नहीं, और इफ इट इज फॉर्म और कम्युनिकेट एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉनिकली। सपोज आप कोई भी ये सपोज आप वेबसाइट ही आप करते हो, आप कोई भी गूगल भी आपने ज्वाइन कर लिया, तो मतलब आईटीए 2000 में स्पेसिफिकली प्रोवाइड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट्स जो है। तो अभी हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है जो 1872 का, तो सेक्शन 10 मतलब gives recognition to the electronic contracts which are entered through electronic form। तो जो हम रेगुलरली हम लोग क्या करते हैं, कोई भी कंपनी पहले क्या करती थी, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वो डिजिटली साइन नहीं होती, और हम लोग पहले एक दूसरे के वहां जाते थे, वो पूरा वो बंच लेके और हम लोग साइन करवा, मतलब कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी अनएनफोर्सेबल ऑन द ग्राउंड दैट द फॉर्मेशन और कम्युनिकेशन एंड एक्सेप्टेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इलेक्ट्रिक फॉर्म और इलेक्ट्रॉनिक मींस। तो अनलेस एंड अनटिल मतलब आज हमने किसी कंपनी को भेजा ई साइनिंग के लिए कॉन्ट्रैक्ट हम लोग भेजते हैं, तो एट दैट टाइम होता क्या है कि मतलब ये पहले तो हम देखते हैं कि ये इंपॉर्टेंट हियर मतलब आप सेक्शन 2R आपको देखना पड़ेगा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का, जो इसका डेफिनेशन है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म का। तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म मींस मतलब एनी इंफॉर्मेशन सेंट और जनरेटेड और रिसीव्ड और स्टोर्ड इन मीडिया और इन कंप्यूटर मेमोरी और माइक्रोफिल्म और मतलब ऑप्टिकल कंप्यूटर जनरेटेड और मतलब सिमिलर डिवाइस। तो अभी वैलिडिटी कॉन्ट्रैक्ट जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट की जो वैलिडिटी है वो सपोर्टेड बाय सेक्शन 65B ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट है। तो अब सेक्शन 65B है क्या, एनी इंफॉर्मेशन इन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड प्रिंटेड ऑन अ पेपर और stored or recorded or copied in optical magnetic media or either in computer or shall be deemed to be document। मतलब सेक्शन 65 बोलता है कि जो भी आपका मतलब एविडेंस एक्ट का जो सेक्शन 65B है वो डॉक्यूमेंट कैन बी एडमिसेबल एज एविडेंस इन एनी प्रोसीडिंग्स विदाउट एडिशनल प्रूफ ऑफ द ओरिजिनल। तो इलेक्ट्रॉनिक ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, उनकी साइनिंग की रिक्वायरमेंट होती है क्या है, एक तो इलेक्ट्रॉनिक टेक्निक स्टेटेड इन द सेकंड शेड्यूल ऑफ द एक्ट, सेकंड डिजिटल सिग्नेचर। अब डिजिटल सिग्नेचर होपफुली आई कैन मतलब अज्यूम के मतलब सबको मालूम होगा
But still, in this thing also, interestingly, there is a lack of specific jurisprudence on electronic signing under Indian law. But however, going to the Evidence Act, we can recognize the document valid in two forms: documents that are presumed valid, and documents that are proves proved as valid. So मतलब इन केस ऑफ कोई भी लिटिगेशन होता है तो बर्डन ऑफ प्रूफ जो होता है वो उसके ऊपर होता है जो चैलेंज कर रहा होता है ऑथेंटिसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर. तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट जा मतलब ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड इन इंडिया, बट स्टिल ट्रेडिशनल एग्जीक्यूशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज मोर रैम्पर्ट. एंड आफ्टर कोविड-19, हाँ मतलब ड्यू टू कोविड-19 ये आप देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट्स मतलब नया एक चलन हुआ था, बट फॉर अ टाइमिंग वो इतना मतलब वो नहीं था. आज की डेट में भी हम लोग थोड़ा क्या है, ट्रेडिशनली हम लोग जा रहे हैं और इतना वो कर नहीं रहे इलेक्ट्रॉनिक इसका. तो कहीं ना कहीं हमको इसको बढ़ावा देना चाहिए. Like, sir, I would like to ask you one more thing. Like, I've never dealt in cyber law cases before. I was into civil and criminal cases. I would like to ask you, how is like e-evidence supporting these things? Because in civil cases we have the like hard evidence in the hand. How does evidence support in the cases of these? ये जो ई एविडेंसेस है वो होता है क्या? पहली बात तो जैसे मैंने अभी बोला है कि सेक्शन 65 भी जो है वो इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 में जो सेक्शन 65 भी बोले हैं उसमें इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जो होता है, जो प्रिंटेड ऑन पेपर होता है, जो भी सपोज आज कोई केस हो गया, सपोज ये मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा इसमें, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स. ये मोस्ट ऑफ 65 बी का जो यूज कहाँ होता है इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस का. आप मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट जो हम लोग कभी लड़ते हैं तो उसमें क्या होता है, 60 एक आपका स्क्रीनशॉट या अगर जो वाइफ होती है वो अपने हस्बैंड का जो आईटीआर होते हैं अभी वो प्रोड्यूस करते हैं. पर अभी वेदर अभी आप बैंक में जाते हैं और आप पासबुक होती है तो उसमें आप बैंक की पासबुक वो लोग अपने को आपको एक प्रिंट करके देते हैं और साइन और स्टैम्प कर देते हैं, तो वो हो गया आपका एविडेंस. बट वही आपको आजकल वो चलन नहीं रहा है पासबुक का, बहुत कम बैंक में, प्राइवेट बैंक में आपको एक वो लोग मेल कर देते स्टेटमेंट. तो जब आपको मेल आ जाता है या फिर आपको किसी के ऊपर आपको किसी को मेल आया है आपका, या फिर आपके साथ किसी ने मतलब मैट्रिमोनियल केस का लूंगा तो अगर आपकी कोई चैट होती है या कुछ केसेस में चैट को एविडेंसेस की वजह से कॉन्ट्रैक्ट हो गया, तो बहुत सारे केसेस में क्या हो गया कि आज की डेट में ईमेल से सब बातचीत होती है, पर्सनल बातचीत बंद हो But sir, I have heard like these chats and WhatsApp chats and all are secondary evidences in court, not the primary one. Yeah, I'm coming to that later on. Just जैसे ये प्राइमरी उसके लिए मेरे को एविडेंस एक बताना पड़ेगा आपको कि प्राइमरी एविडेंसेस क्या होते हैं और सेकेंडरी. मैं आपको बता रहा हूँ प्राइमरी एविडेंस में क्या आता है. जैसे मैं आपको बताया अभी, बैंक से आप पासबुक लेके आए या कोई भी एविडेंस जो आपके पास हार्ड फॉर्मेट में हुआ, तो वो सब आपके पास प्राइमरी एविडेंसेस में आता है. हियर से एविडेंस भी होता है. अब इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस नया आया तो उसमें क्या है, कोई भी एविडेंस जो होता है मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होता है, जो अभी आपको मैंने 1 मिनट पहले भी बताया था कि कोई भी मतलब एविडेंस होता है जो मतलब प्रिंटेड ऑन पेपर और स्टोर ऑन रिकॉर्डेड और कॉपीड इन ऑप्टिकल और मैग्नेटिक सीडी में होता है, पेन ड्राइव में होता है, या मैग्नेटिक में प्रोड्यूस बाय कंप्यूटर, जैसे कंप्यूटर से हमने प्रिंट आउट लिया है, तो वो सब सेकेंडरी एविडेंस होते हैं. तो वो प्राइमरी और सेकेंडरी एविडेंस में क्या होता है, जब आप सेकेंडरी एविडेंसेस कोर्ट में प्रोड्यूस करते हो, स्पेसिफिकली मैंने आपको बताया कि अगर आप छोटी चीज, चलो अब बड़ा अभी हो सकता है आधे लोगों को ये नहीं मालूम कि सेकेंडरी एविडेंसेस क्या है. आई डोंट नो कि मतलब सब एडवोकेट्स है या कोई और है, बट जब सेकेंडरी एविडेंस हम लोग प्रोड्यूस करते हैं स्पेसिफिकली ये इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस हो गए, तो हमको एक सर्टिफिकेट लगता है अंडर सेक्शन 65 बी. तो अभी तक बहुत सारे लोगों को ये नहीं मालूम था कि आपको सर्टिफिकेट जो प्रोड्यूस करना है वो कौन दे सकता है. तो बहुत सारे केसेस में क्या होता है, सपोज इट वाज प्रिंटेड ऑन दिस कंप्यूटर, जो प्रिंटेड जो कंप्यूटर का जो ओनर होता है वो उस चीज को सर्टिफिकेट दे सकता है कि आई सर्टिफाई दिस, मतलब कि जो भी डॉक्यूमेंट है वो ऑथेंटिक है. और जब कोर्ट में अगर उनकी विटनेस के तौर पे उनको ले जाना पड़ता है. फर्दर ये जो मैट्रिमोनियल केसेस की मैं आपको बता रहा था कि जो चैट वायरल मतलब जो चैट होती है ये सब होती है, वो अब आप जनरली मोबाइल तो आप प्रोड्यूस करोगे नहीं, पॉसिबल ही नहीं कि आप खुद का मोबाइल आप दे दो.
तो उनमें बहुत बार क्या होता है, फोरेंसिक का रोल भी आता है, और बहुत बार ऐसा होता है। अब ये क्या बहुत बड़ा चैप्टर है और हमारे पास टाइम भी बहुत कम है, तो मैं पूरा एलोबरेट नहीं कर पाऊंगा इतना, क्योंकि इट विल टेक पूरा अलग चैप्टर फॉर सो फार एविडेंस एक्ट एंड इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस इज कंसर्न। तो मतलब इतना है कि मतलब अभी सेकेंडरी एविडेंस कैसे प्रोड्यूस करना है वो सर्टिफिकेट के साथ में है, और जो सेक्शन हमने बताई 2R और वो सब, तो उसके थ्रू हम लोग 65B के थ्रू हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं कोर्ट में। for sharing, sir. Moving ahead, we would like to express our sincere gratitude to Advocate Kartike, founder and chairperson of Cyber Legal Associates, for being our guest today at Conversations with Consultants. Your presence and engagement has helped it to make it a success. Thank you so much. थैंक यू वेरी मच। Even I would like to thank Advocate Kartike Paneri for his participation as a guest speaker at our event, Conversation with Consultants. Thank you for providing insight into your inspirational journey as a further, we would also like to thank our audience for listening patiently throughout the event. थैंक यू एवरीवन, थैंक Uh, यू। Thank you so much, sir. Looking ahead, we are excited to announce our next Thank you episode of. everyone for joining with us today. Thank you so much, sir.